Okay, good morning, everyone. In the last lecture, we talked about contiguous memory allocation scheme, where we discussed the fixed size partitioning and the variable size partitioning. So, we have studied that in contiguous memory allocation scheme, the entire process is allocated the memory space continuously, and entire processes having the exact contiguous memory space allocation. And in fixed size partitioning, there is the partitions are already there for the random access memory. And then we check the size of the process. And if the size of the process is less than the partition, then process occupies the memory space. Otherwise, it will wait for the space of the exact size. So this is what we have learned in the contiguous memory allocation scheme. So today we will discuss non-contiguous memory allocation scheme. And first of all, we will learn the basics, how non-contiguous is different from contiguous. And just like in contiguous memory allocation, we have two strategies, fixed size partitioning and variable size partitioning. Here in non-contiguous also we have two different strategies. One is known as paging and second is known as segmentation. So today we will focus on paging, and it is one of the most important concept of operating systems. And modern operating system, modern computer system, almost 90% of the operating systems uses the concept of paging. And here we will learn that there isn't any need to put the entire process all together in the main memory. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम process को divide करेंगे, उनको हम pages बोलेंगे. That's why the technique is known as paging. And we will place those pages at different memory location in the RAM. So that's why it is non-contiguous. So first of all, you must understand the difference between contiguous and non-contiguous. In the case of contiguous memory allocation, entire process will occupy the memory space all together. तो अगर पूरा प्रोसेस अगर 100 इंस्ट्रक्शंस का है और अगर हर इंस्ट्रक्शन 1 बाइट की है, तो पूरे की पूरी 100 बाइट्स वो मेमोरी स्पेस में एक साथ ऑक्यूपाई करेगा. एडवांटेज क्या रहता है, अगर मुझे बेस एड्रेस पता है, देन डेफिनेटली आई विल बी एबल टू हैव एक्सेस टू एनी ऑफ द इंस्ट्रक्शन. बट डिसएडवांटेजेस भी हमने बहुत सारे डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में कॉन्टिजियस की. इन द केस ऑफ फिक्स्ड साइज पार्टीशनिंग वी यूज टू हैव द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन हमने डिस्कस किया था, दैट इज द unused memory, or we can say wastage of memory space. And if we talk about variable size partitioning, we used to have external fragmentation, and also the solution was either to use compaction or to use non-contiguous memory management scheme. So today we will focus on this paging. So paging is one of the non-contiguous memory management scheme that avoids external fragmentation as well as the need for compaction. So the concept is a little bit complex. So if you feel any doubt anytime in between, just unmute your mic and you can ask me. So let me discuss paging. So what exactly is paging? So in the case of paging, first of all, we divide our physical memory or the random access memory into fixed size blocks, and those blocks are known as frames. तो सबसे पहले हम पेजिंग में क्या करेंगे, अपनी जो मेन मेमोरी है, हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसको हम फिजिकल मेमोरी भी बोलते हैं, we will divide that RAM into fixed size blocks, and those blocks are known as frames. Second task, what we have to do, we will also divide our logical memory, or we can say our entire process, into blocks again. And the most important thing in paging is that जो भी हमारी logical memory के blocks का size होगा वो exactly same होना चाहिए जो हमारे physical memory के blocks का size है. So that's why we will be able to place that particular block into the frame. तो जब हम मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं, उन फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स को हम फ्रेम्स बोलते हैं. और जब हम लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड करते हैं, या फिर मैं बोलूं प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं फिक्स साइज ब्लॉक्स में, तो उन ब्लॉक्स को हम पेजेस बोलते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साइज ऑफ फ्रेम हमेशा इक्वल होगा साइज ऑफ पेज के. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ ऑल द फ्री फ्रेम्स. तो फ्रेम्स कहाँ पे हैं, मेन मेमोरी में. सो लेट मी शो यू द
picture. So this is the diagram to understand the concept of paging. So here you can see on the right hand side, we have physical memory or main memory, or better to say random access memory. And we have divided this physical memory into fixed size blocks. And these fixed size blocks are known as frame. So here you can see we have 8 different fixed size blocks, and we can say we have 8 different frames, and these are always numbered from 0. So the frame number will be 0 to 7. Similarly, our logical memory, or we can say this is complete one process. This is entire one process, but now this process is divided into fixed size block also, and these fixed size blocks are known as pages. And the size of this fixed size block will exactly be same as the size of this fixed size block. Better to say the size of page will always be equal to size of frame if we are dealing with the paging concept. So I hope इतना आप लोगों को clear हुआ है. This is the basics of this paging strategy. तो हम मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं फिक्स साइज ब्लॉक में, जिसको हम फ्रेम बोलते हैं. हम अपने प्रोसेस को या लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड करते हैं फिक्स्ड साइज ब्लॉक में, जिसको हम पेज बोलते हैं. पेज का साइज और फ्रेम का साइज एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, तभी हम इस पेज को इस फ्रेम के अंदर एग्जैक्टली फिट कर पाएंगे. So to run a program of size n pages, we need to find n free frames and then load the program. So again, you can see if in my process, I am having 4 different pages numbered from page 0 to page 3. Then to load this entire process into the main memory, what is the requirement? We need 4 different available space, or better to say 4 holes are required, so that this entire process can be put into the main memory. And there is a very important concept of page table. So in the case of paging, we always set up a page table, and the major task of this page table is to translate the logical address into the physical address. तो हमने starting में बहुत बार discuss किया है, CPU always generates logical address, which is also known as virtual address, but actually जो execution होती है वो main memory से होती है, और main memory में हो सकता है वो process किसी और address पे store हो, उस address को हम physical address बोलते हैं. And paging definitely avoids external fragmentation, but यहाँ पे भी देखो हम रैम को फिक्स साइज पार्टीशंस में डिवाइड कर रहे हैं, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है. सो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ पेजिंग. तो अगर किसी को भी डाउट है, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क मी इन बिटवीन. Basic thing you have to remember in the paging, we divide our main memory or physical memory into fixed size block, and these blocks are known as frames. Similarly, we divide our process or say logical memory into fixed size blocks, and these blocks are known as pages. So size of page and size of frame will always be equal. So let us take an example here. If I want to run this particular process, तो अगर मुझे इस process को run करना है, तो logical memory से कहाँ लेके जाना पड़ेगा? RAM के अंदर लेके जाना पड़ेगा, physical memory में. And now this process is divided into 4 different pages. तो अब ये process किस में divide हो चुका है? 4 फिक्स्ड साइज ब्लॉक में, 4 पेजेस में, जिनकी नंबरिंग क्या है? पेज 0 टू पेज 3. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट पेजेस को लोड करना पड़ेगा मेन मेमोरी में. नाउ नॉन कॉन्टिजियस में हमें एक साथ प्लेस नहीं करना. दिस इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन. यू कैन सी जो पेज 0 है वो फ्रेम नंबर 1 के अंदर है, पेज 1 है वो फ्रेम नंबर 4 के अंदर है, page 2 is in frame 3, and page 3 is in frame 7. So this is the beauty of non-contiguous memory allocation. We need not to put the entire process all together. We have divided the process into 4 pages. Now these pages can occupy different blocks or different frames in the main memory. So automatically this is non-contiguous allocation. Now, if I talk about the page table, you can see this is very interesting concept. I am going to discuss after 5-10 minutes. So here you can see in page table, we have 2 different columns. So first column is simply the page number.
Now my process is divided into 4 pages numbered from 0 to 3. So this is simply the page number. And now this is the second column of page table which represents the frame number. तो page table हमें क्या बता रहा है? पेज 0 कौन से कौन सा फ्रेम ऑक्यूपाई किया हुआ है, पेज 1 ने कौन सा फ्रेम ऑक्यूपाई किया हुआ है. सो यू कैन सी पेज 0 इज लोडेड इनटू फ्रेम 1, पेज 1 is loaded into frame 4, page 2 is loaded into frame 3, and page 3 is loaded into frame 7. So this is what page table tells us, and it is going to convert the logical address generated by the CPU to the physical address. तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे कैसे लॉजिकल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं. एंड हमने सीखा था दैट दिस इज द टास्क ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. एमएमयू का टास्क होता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना. एंड पेजिंग के केस में दिस पेज टेबल एक्ट्स एज द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट. तो पेज टेबल का काम है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना. नाउ just before starting how to convert any logical address into physical address, I hope the basic concept of paging is very much clear to you, and this is the category of non-contiguous. So easily you can see in this diagram we have divided the process into different pages, and these pages are occupying different memory space in the RAM. They are not sitting or occupying the space altogether. So this is what the concept of non-contiguous memory allocation is. Now the most important thing, the concept of paging. So whatever address CPU is going to generate is known as the logical address, and that logical address is divided into two parts. Very first part is known as पेज नंबर एंड सेकंड इज पेज ऑफसेट. तो भाई पेज नंबर क्या है, पेज ऑफसेट क्या है, लेट्स डिस्कस दैट. सो पेज नंबर used as an index into a page table. So here you can see we were having 4 different pages numbered from 0 to 3, and these number acts as an index to this पेज टेबल. तो जो पेज नंबर थे हमारे पास 0 1 2 3 वो इस पेज टेबल के लिए क्या बन गए हैं, इंडेक्स बन गए हैं. एंड it is used as an index into the page table which contains the base address of each page in the physical memory. तो भाई जितने भी प्रोसेसेस होंगे हर प्रोसेस के लिए एक पेज टेबल रैम में स्टोर होगा, और वो क्या बताएगा, देखो पेज टेबल से हमें क्या पता चल रहा है, इस प्रोसेस के लिए कौन सा पेज मेन मेमोरी में कौन से फ्रेम में है. सो दिस इज व्हाट पेज टेबल रिप्रेजेंट्स. And second portion of this logical address is page offset. So this page offset is combined with the base address to define the physical memory address, that is the final address which is sent to the memory unit. तो भाई ये page number और page offset क्या करता है, let's discuss it. So this is the exact picture, this is the actual paging hardware. So CPU always generates logical address, as we know, and this logical address is divided into two parts. Just we have studied as address generated by CPU is divided into page number and page offset. So page number is represented by small p and page offset is represented by small d. Now once the logical address is generated, नाउ वी हैव पेज टेबल. तो इस पेज टेबल का काम क्या है, इस पेज टेबल को इस लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करना है फिजिकल एड्रेस में. एज वी हैव डिस्कस्ड सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, जो कौन सा एड्रेस है, जो प्रोसेस हमारा सेकेंडरी मेमोरी में हमारी हार्ड डिस्क में पड़ा होता है, लेकिन जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है वो हमेशा कहाँ से होती है, रैम से. तो किसी भी प्रोसेस को अगर रन होना है तो सबसे पहले हम उसे हार्ड डिस्क से रैम में लेके आते हैं. तो रैम में हो सकता है वो किसी और एड्रेस पर जाकर स्टोर हो, एंड फाइनली जो सीपीयू ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है वो हमेशा रैम से करनी है, तो उसे जो फाइनल एड्रेस चाहिए वो फिजिकल एड्रेस चाहिए. सो दिस इज द मोटिव ऑफ द पेज टेबल. पेज टेबल हियर will convert the logical address generated by the CPU into the physical address, and definitely finally the CPU will execute the instructions on the basis of that physical address. Now page table कैसे ये काम करता है, this is what we have to learn. So just before that, this is the diagram. So I hope this is also clear to you. CPU ने generate किया logical address. Logical address के दो parts हैं, first is the page number and second is page offset. इस page number को हम
कहाँ पे इनपुट करेंगे? पेज टेबल में। इस पेज टेबल की हेल्प से हमें क्या पता चलेगा कि वो वाला जो पेज है वो कौन से फ्रेम में है। उस फ्रेम की हेल्प से हमें फिजिकल एड्रेस यानी कि कुछ बेस एड्रेस मिलेगा। उस बेस एड्रेस में हम एज इट इज जो भी यहाँ पे ऑफसेट थी उसको ऐड कर देंगे और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होके हमें क्या मिल जाएगा? एक फिजिकल एड्रेस मिल जाएगा विच इज द एक्चुअल एड्रेस जहाँ से सीपीयू ने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। सो अगर यहाँ तक किसी को डाउट है यू कैन जस्ट आस्क मी, otherwise just let me explain you the entire concept with the help of example जिससे आपको exactly समझ आएगा कि कैसे हमारा एड्रेस कन्वर्ट होता है। सो एनी डाउट एनीवन प्लीज लेट मी नो। सर एक बार फिर से रिपीट करना ये कन्वर्शन का। ये लास्ट जो मैंने बताया अभी। हाँ जी हाँ जी। ओके देखो आयुष, सीपीयू जनरेट करता है हमेशा लॉजिकल एड्रेस एंड पेजिंग के केस में लॉजिकल एड्रेस हमेशा हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज नोन एज पेज नंबर एंड सेकंड इज नोन एज पेज ऑफसेट। तो जो भी हमारा पेज नंबर होगा इसको हम पेज टेबल की हेल्प से हम यहाँ पे देखो क्या पता लगाएंगे कि जो ये वाला पेज है वो एग्जैक्टली कौन से फ्रेम में है। जो अब मैंने आपको इस एग्जांपल में दिखाया कि सपोज पेज 0 है वो हमारा फ्रेम नंबर 1 में है, पेज 2 है हमारा वो फ्रेम नंबर 3 में है। तो समथिंग लाइक दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो ये पर्टिकुलर पेज है वो कौन से फ्रेम के अंदर है। उस फ्रेम की हेल्प से और एक पेज ऑफसेट की हेल्प से हम समझेंगे कि फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट हो सकता है। तो इस एग्जांपल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी डिस्कस किया है। इज इट ओके आयुष? यस सर। ओके ओके, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो आपको कंप्लीट समझाएगा कि कैसे हमारे पेजिंग का एक्चुअली काम हो रहा है, लॉजिकल एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी तक आपने क्या समझा है? बेसिकली सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट करना है वो लॉजिकल एड्रेस है और लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कौन कन्वर्ट करेगा? यहाँ पे पेज टेबल। पेज टेबल हमारा यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है जिसका काम क्या है? लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना। पेज टेबल का खुद का कंटेंट क्या है? जो उसका इंडेक्स है वो पेज नंबर है और जो उसके अंदर का कंटेंट है दैट इज द फ्रेम नंबर। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है? कौन सा पेज कौन से फ्रेम के अंदर है। सो दिस इज द कंटेंट ऑफ पेज टेबल। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। तो ये सिर्फ बुक में आपको इतना ही गिवन है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। और अगर आपको यहाँ पे किसी को कहीं भी कोई डाउट लगता है यू कैन जस्ट stop me in between and you can just let me know. I will explain it once again. So just try to understand this example. सबसे पहले ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड पर एक फिजिकल मेमोरी गिवन है, एक मेन मेमोरी गिवन है जिसका साइज है सपोज 32 बाइट्स। तो 32 बाइट्स या आप इसको देखो एमबी भी ले सकते हो, यूनिट कोई भी हो सकती है मेमोरी की, दैट डजंट मैटर, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पेजिंग। सो ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव 32 बाइट्स और वी कैन से 32 MB। चलो मैं MB ले लेता हूँ। 32 MB की मेरे पास रैम है जो अवेलेबल है यूजर प्रोसेसेस के लिए एंड द साइज ऑफ द फ्रेम इज 4 MB। तो यानी कि मेरे पास एक रैम है 32 MB की और उस 32 MB के मैंने फिक्स्ड साइज पार्टीशंस करने हैं और हर पार्टीशन का साइज, हर ब्लॉक का साइज या हर फ्रेम का साइज क्या है? 4 MB। तो भाई कितने पार्टीशंस बनेंगे टोटल? 32/4। सो वी विल बी हैविंग टोटल 8 डिफरेंट फ्रेम्स for this physical memory. So you can see this is frame number 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. From 0 to 7, I am having different 8 different frames. So पेजिंग का सबसे पहला कंसेप्ट यही है, अपनी मेन मेमोरी को ब्रेक करना है किसमें? फिक्स्ड साइज ब्लॉक में जिसको हम फ्रेम्स बोलते हैं। सो 8 फ्रेम्स आर देयर। नाउ वी हैव अ प्रोसेस, इस प्रोसेस का साइज है 16 MB। तो अगर ये 16 MB का प्रोसेस है और ये 32 MB की मेन मेमोरी है एंड वी जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेजिंग में फिक्स्ड साइज पेजेस में कन्वर्ट करके फिर हम पेजेस को इसमें लोड करेंगे। तो अगर हमारी मेन मेमोरी में जो फ्रेम्स हैं अगर उसका साइज 4 MB है देन डेफिनेटली जब हम इस प्रोसेस को डिवाइड करेंगे पेजेस में तो डेफिनेटली वो भी कितने का होगा? 4 MB का ही होगा। वो मैंडेटरी कंडीशन है पेजिंग में। साइज ऑफ पेज शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू साइज ऑफ फ्रेम। सो यू कैन सी 32 MB मेन मेमोरी को मैंने 8 पार्टीशंस में डिवाइड किया, ईच ऑफ 4 MB, एक हर एक ब्लॉक 4 MB का है। सिमिलरली 16 MB के जो प्रोसेस को मैं
4 पार्टीशंस में डिवाइड करूंगा, जस्ट बिकॉज कि मुझे हर एक पेज का साइज, हर एक ब्लॉक का साइज क्या रखना पड़ेगा यहाँ भी 4 MB। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज जो मेन मेमोरी में पार्टीशन है वो भी कितने हैं, 4 MB के हैं, तो यहाँ भी मुझे 4 MB का ही पार्टीशन रखना है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड 4 MB 4 MB 4 MB 4 MB 16 MB का प्रोसेस, एंड पेज नंबर विल बी फ्रॉम 0 to 3। एंड जो यहाँ पे हर एक कैरेक्टर मेंशन है, ध्यान से देखो ABCD, सो यू कैन एज्यूम दैट ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज टेकिंग 1 MB। तो यानी कि अगर मेरे पास 4 MB है तो एक ब्लॉक के अंदर मैं 4 कैरेक्टर्स रख सकता हूँ, सो टोटल 16 कैरेक्टर्स आर देयर, ईच ऑफ 1 MB। सो फर्स्ट पेज 4 MB का है तो इसमें ABCD आ गया, नेक्स्ट पेज अगेन 4 MB का है, देन नेक्स्ट 4 MB, देन नेक्स्ट 4 MB। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। रैम इज ऑफ 32 MB, एंड इसको मैंने डिवाइड किया फ्रेम साइज 4 MB में, तो 8 पार्टीशंस हो गए। नाउ वी हैव फ्रेम 0 to 7। 16 MB का प्रोसेस था, इसको मुझे रन करना है इस रैम में, तो डेफिनेटली मुझे पेज का साइज भी 4 MB रखना पड़ेगा। तो अगर 16 MB का प्रोसेस है और 4 MB का पेज है तो 4 पार्टीशंस बनेंगे। नाउ आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन है ये क्या है, लॉजिकल एड्रेस। तो भाई ये लॉजिकल एड्रेस है, और जो यहाँ पे रिप्रेजेंट है ये फिजिकल एड्रेस है। तो अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर की बात करता हूँ, जी कैरेक्टर की बात करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जी है, जो इस जी का जो लॉजिकल एड्रेस है वो क्या है, 6। फाइन, 6 इज द लॉजिकल एड्रेस ऑफ दिस कैरेक्टर जी। लेकिन हो सकता है नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन में इस कंप्लीट पेज को मैं किसी और प्लेस पर जाकर बैठाऊंगा। तो मैं अगर पेज 1 की बात करूं तो पेज नंबर 1 कहाँ पे है, 6th फ्रेम पे है, यानी कि EFGH मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान से समझना, जो लॉजिकल एड्रेस था जी का वो 6 था, लेकिन जब वो रैम में चला गया तब उसका जो लॉजिक फिजिकल एड्रेस है वो कितना हो गया, 26 हो गया। तो यहाँ 6 से वो 26 पे चला गया। तो जो CPU एड्रेस जनरेट करेगा वो 6 करेगा। पेज टेबल का काम क्या है, इस 6 को किस में कन्वर्ट करना, 26 में। दिस इज द मैपिंग, दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। तो ये एक सिनेरियो गिवन है, सपोज ये 4 पेजेस थे 0 से 3 तक। तो भाई जो 0 वाला पेज है वो कौन से फ्रेम में है, 5 नंबर फ्रेम में है। सो 0 1 2 3 4 5, सो दिस इज आर पेज नंबर 0। जो पेज नंबर 1 है वो 6th फ्रेम में है, सो 0 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज आर पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 की बात करें तो वो फर्स्ट फ्रेम में है, दिस इज पेज नंबर 1, सॉरी पेज नंबर 2। एंड जो लास्ट पेज है पेज नंबर 3 वो हमारा फ्रेम 2 में है, सो दिस इज फ्रेम नंबर 2। तो भाई मेन बात को क्या ध्यान रखना है, दोनों ही केस में हमेशा हमारी नंबरिंग 0 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे 8 पार्टीशंस हैं, तो फ्रेम नंबर 0 से 7। यहाँ पर 4 पार्टीशंस हैं, 4 पेजेस हैं, पेज नंबर 0 to 3। एंड पेज टेबल आपको समझ आ गया होगा क्या बता रहा है हमें, ये हमारे पेजेस हैं, 4 पेजेस, ये कंप्लीट पेज 0, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3। तो पेज 0 कहाँ पे स्टोर है, फ्रेम नंबर 5 में। पेज 1 कहाँ पर स्टोर है, फ्रेम नंबर 6 में। पेज नंबर 2 कहाँ पर स्टोर है, फ्रेम नंबर 1 में। एंड पेज 3 ये क्या है, MNOP, ये हमारा फ्रेम नंबर 2 में, तो यहाँ पर स्टोर है। नाउ जो यहाँ पर गिवन है ये लॉजिकल एड्रेसेस हैं, और जो यहाँ गिवन है वो फिजिकल एड्रेसेस हैं। तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, अगर मैं किसी और कैरेक्टर की भी बात करूँ, के कैरेक्टर की बात करूँ, तो के कैरेक्टर का लॉजिकल एड्रेस क्या है यहाँ पे, 10। तो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जब ये रैम में जाएगा तो इसको 10 ही मिले। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो ये 10 जब फिजिकल मेमोरी में गया इस पेज के अकॉर्डिंग, तो इस के कैरेक्टर का फिजिकल एड्रेस कितना हो गया, 4 5 6। तो भाई ये 10 से 6 में कन्वर्ट हो गया। तो पेज टेबल का यही काम है कि जो सीपीयू ने एड्रेस जनरेट करा वो तो 10 था, लेकिन एक्चुअल जब सीपीयू ने इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है तो वो हमेशा रैम से करना है। तो फिजिकल एड्रेस जो है वो अब इसका 10 नहीं रहेगा, 10 से 6 हो जाएगा। तो भाई ये कैसे मैपिंग होगी, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन टुडेज लेक्चर। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ये एग्जाम्पल जितना मैंने अभी तक बताया है? If anyone having any doubt, please let me know. Any doubt, anyone? Okay, okay, it's very good if you are able to understand till here, because अगर यहाँ तक समझ आएगा तभी आगे समझ आएगा। Fine. So this is our logical memory, this is our physical memory। ये हमने 32 MB की थी, इसको हमने
8 फ्रेम्स में डिवाइड किया, ईच फ्रेम इज ऑफ 4 MB। 16 MB का मेरे पास प्रोसेस था, तो यहाँ पर भी मुझे पेज का साइज 4 MB ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 पार्टीशंस बन गए, each of 4 MB. So we have 4 pages from 0 to 3, and we have 8 frames from 0 to 7. And if we want to execute this process, तो हम इन pages को यहाँ पर non contiguously पुट कर सकते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो। तो सिनेरियो जब हमने ये किया कि हमने पेज 0 को 5th फ्रेम में रखा, पेज 1 को 6th फ्रेम में रखा, पेज 2 को 1st फ्रेम में रखा और पेज 3 को 2nd फ्रेम में रखा, तो इनके लॉजिकल एड्रेसेस और फिजिकल एड्रेसेस में डिफरेंस आ गया। तो कोई भी आप एग्जांपल उठा के देख सकते हो, ए का यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस 0 था, लेकिन वो ए का लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस क्या बन गया, यहाँ पे 20 बन गया है। तो यही काम पेज टेबल को करना है। लॉजिकल एड्रेस हमेशा सीपीयू जनरेट करेगा, लेकिन फाइनली उसको एग्जीक्यूट कहाँ से करना है। अगर वो ए को एक्सेस करना चाहता है तो वो जनरेट 0 करेगा, लेकिन फाइनली उसको पेज टेबल क्या बताएगा, भाई ए का जो एड्रेस है वो 20 है, 0 नहीं है। तो यही हमें सीखना है। फाइन, ओके। सो अब जरा ध्यान से समझना, बिकॉज बोर्ड नहीं है तो बोर्ड पे बड़ी आसानी से आपको समझ आता कैसे ये टास्क होगा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद माई बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। सो आप देख सकते हो यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस हमारा डिवाइड होता है किसमें, 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज पेज नंबर एंड सेकेंड इज पेज ऑफसेट, P एंड D। तो हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फर्स्ट इज पेज नंबर एंड सेकंड इज पेज ऑफसेट। तो भाई कंप्यूटर हमेशा बाइनरी में डील करता है, 0 और 1 में डील करता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर चलो K का ही ले लेता हूँ। अगर सीपीयू को इस K कैरेक्टर को एक्सेस करना है, या इस सपोज एक इंस्ट्रक्शन है या कुछ भी है, इस K को एक्सेस करना है या एग्जीक्यूट करना है, तो सबसे पहले देखो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू यहाँ पर K को एक्सेस करने के लिए लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। किसका, K का। तो अभी तक सीपीयू को ये पता है कि लॉजिकल मेमोरी के अंदर इस K का जो लॉजिकल एड्रेस है वो क्या है, 10। तो K का जो लॉजिकल एड्रेस है वो 10 है, तो यहाँ पर सीपीयू 10 जनरेट करेगा। अब वो जो 10 है सबसे पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। तो भाई 10 का बाइनरी क्या होता है, 8421 लगाओ, 1010। तो 1010 इज द बाइनरी ऑफ 10। तो आपका जो लॉजिकल एड्रेस था K का वो 10 था, वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा बाइनरी में, दैट इज 1010। अब उस 1010 को हमें क्या करना है, यहाँ पर फिट करना है। आधी बिट्स P में जाएंगी, आधी बिट्स D में जाएंगी। कितनी बिट्स जाएंगी, देखो हमारे पास 4 बिट्स हैं, तो हम 2-2 करेंगे, 3-1 करेंगे, 1-3 करेंगे, वो कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान से देखो। पहली बिट किस चीज की है हमारी, पेज नंबर की। फाइन, फर्स्ट बिट इज फॉर पेज नंबर एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं हमारे पास, 4। वी हैव टोटल 4 पेजेस एंड 4 पेजेस को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ है, 0 से 3। 4 पेजेस को हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, 0 to 3, एंड 8 फ्रेम्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 to 7। तो हमेशा हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर सीपीयू को K को एक्सेस करना है तो K का जो लॉजिकल एड्रेस है वो 10 है, तो सबसे पहले सीपीयू एड्रेस जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, लेकिन वो बाइनरी में करेगा, नो इशू। 10 का जो बाइनरी होता है वो 1010 होता है, दैट इज ओके। अब उस 1010 में से कुछ बिट्स इसमें जाएंगी, कुछ बिट्स इसमें जाएंगी। तो कितनी बिट्स जाएंगी वो हमें कैसे पता लगेगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो जरा ध्यान से सुनो, पेज नंबर है हमारी, पहला पार्ट होता है जो लॉजिकल एड्रेस का, पेज नंबर। तो हमें क्या चेक करना है कि मेरे एग्जांपल में कितने पेजेस हैं। सो आई एम हैविंग 4 डिफरेंट पेजेस, बट नाउ दीज 4 पेजेस आर रिप्रेजेंटेड फ्रॉम 0 to 3। तो अगर मैं 0 का बाइनरी करूं तो 00 होगा, और मैं 3 का बाइनरी करूं तो 11 होगा। तो यानी कि अगर मेरे पास 4 पेजेस हैं जिनको मैं 0 to 3 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो 3 का जो हाईएस्ट नंबर है 3, उसका जो बाइनरी है वो है 11। यानी कि मुझे 3 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो भाई यहाँ पर मैं जो भी लॉजिकल एड्रेस होगा बाइनरी में, उसमें जो जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं वो मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा। तो मेरे पास क्या थी भाई, 1010 थी। तो 1010 क्या है, 10 का बाइनरी है, तो उस 1010 की जो फर्स्ट 2 बिट्स हैं वो यहाँ चली जाएंगी, यानी कि 10 यहाँ पे आएगा और रिमेनिंग क्या रह गया, 10। तो हम इसको भी जरा देखते हैं, ये क्या है, देखो पेज ऑफसेट। ऑफसेट क्या होती है, अगर मैं इस पेज नंबर की बात करूं तो इसके अंदर भी मेरे पास 4 कैरेक्टर्स हैं, तो ये ऑफसेट हो गई 0 1 2 3, बिकॉज हर एक पेज कितने साइज का है, 4 MB का। सो दिस इज ऑफसेट। तो मैं इसी एग्जांपल की बात करूं
तो जो लॉजिकल एड्रेस का फर्स्ट डिवीजन था वो पेज नंबर बता रहा था, तो पेज नंबर कितने पेजेस हैं, 4 पेजेस हैं। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, 0 to 3। बाइनरी की बात करें, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 1 यानी कि 2 ही बिट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट 2 बिट ले जाऊंगा। सेकेंड केस की बात करें, पेज ऑफसेट, ऑफसेट मीन्स साइज ऑफ अ पेज। इस पेज के अंदर कितने साइज का पेज है, 4 MB का, तो भाई यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, तो डेफिनेटली फिर से हम इसको 0 to 3 रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 to 3 अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली 3 इज द हाईएस्ट नंबर, जिसको हम 2 बिट से 1 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी कि नेक्स्ट 2 बिट्स हैं जो वो कहाँ पे यूज होंगी, यहाँ पर। तो कोई भी आप एग्जाम्पल ले लोगे इस केस में जहां पर मेरे पास 4 पेजेस हैं और हर एक पेज का साइज 4 MB है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे 2 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी मुझे 2 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। नाउ कमिंग बैक टू द एग्जाम्पल, के को मुझे एक्सेस करना है, तो भाई के का लॉजिकल एड्रेस क्या है, 10। सीपीयू जनरेट करेगा 10 का बाइनरी विच इज 1010, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेजेस एंड नंबर ऑफ ऑफसेट, दिस 10 का जो डेसिमल 10 का जो बाइनरी है 1010 वो डिवाइड हो जाएगा, 2 बिट्स यहाँ 2 बिट्स यहाँ, तो दोनों में क्या आ जाएगा, 10 और 10। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। पेज ऑफसेट हमारी एज इट इज कैरी हो जाती है फिजिकल एड्रेस में, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता। तो यहाँ वाला जो 10 है वो तो हमारा चला जाएगा यहाँ पर। ये वाला जो 10 है ये कहाँ जाएगा, पेज टेबल में, यहाँ से हमें कोई फ्रेम नंबर मिलेगा, वो वाला फ्रेम हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, 10 का डेसिमल क्या होता है, कौन बताएगा, डेसिमल ऑफ 10? एनीवन? 10 का डेसिमल 1। एनी अदर आंसर? डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन नहीं पढ़ा आप लोगों ने, या 8421 रूल होता है एक? आकांक्षा फिर भी आंसर गलत है आपका। 3, अनदर इनकरेक्ट आंसर। ओके, फाइनली करेक्ट आंसर। तो भाई कनिष्क ने आंसर सही दिया है, 10 जो है उसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2 मिलेगा। 8421 लगाओ और नीचे जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पर 1 कर दो, तो 0010 आप ले सकते हो। तो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता या इसमें डाउट है, सो प्लीज़ जस्ट ट्राई टू रीड दैट, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ज़रा ध्यान से देखो, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ बात कर रहा था के कैरेक्टर की, के कैरेक्टर का लॉजिकल एड्रेस है 10। तो जब सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा तो वो उसका बाइनरी जनरेट करेगा, 10 का बाइनरी होता है 1010। तो 1010 हमेशा हमारा यहाँ पर डिवाइड होगा डिपेंडिंग अपॉन कितने पेजेस हैं और कितने ऑफसेट है, तो यहाँ पर 2 बिट्स डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 10 यहाँ चला गया, 10 यहाँ चला गया, ये वाला 10 एज इट इज यहाँ पर चला जाएगा, दैट डजेंट मैटर। लेकिन इस वाले 10 के साथ हम क्या करेंगे जरा देखते हैं। तो भाई 10 का जो डेसिमल है वो 2 है, सो दैट मीन्स कि जो मेरा के कैरेक्टर है वो कहाँ पड़ा है, सेकंड फ्रेम में पड़ा है। 2 है तो सॉरी, हाँ इसका देखो ध्यान से देखो, 10 का जो डेसिमल है वो 2 है और 2 का मतलब 0 1, सो दैट मीन्स के को मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। तो जो के मेरा वो पड़ा होगा वो कौन से फ्रेम में होगा, 1 में होगा, बिकॉज 2 का मतलब 0 1, हमेशा हम 0 से स्टार्ट करेंगे। और ऑफसेट यहाँ पर क्या वैल्यू है, फिर से 10, तो 10 का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि फिर से 2, यानी कि सेकंड फ्रेम का जो सेकंड थर्ड जो हमारे पास डिजिट होगा वो हमारा के होगा। तो हम सेकंड फ्रेम में, और अगर हम थर्ड की बात करें सो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 1 2, तो दिस इज के। तो हमारा यहाँ पर के पड़ा है, सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट विल बी
कन्वर्टेड। तो यहाँ पर देखो फिजिकल एड्रेस के का कितना है, 6 है, बिकॉज यहाँ पे आई का क्या है, 4 है, इसका जे का 5 है, के का 6 है। तो यहाँ पर 10 से हमें 6 में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर 1010 था, ये वाला 10 एज इट इज हमारा चला जाएगा कहाँ पर, ऑफसेट में। और यहाँ से हमें देखो एफ की क्या वैल्यू मिलेगी, ये वाला 10 जो था वो पहले कहाँ गया, यहाँ पर गया। 10 को हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि 2 है। 2 मतलब सेकंड फ्रेम, 2 मतलब सेकंड फ्रेम, दैट मीन्स दिस वन। एंड दिस पर्टिकुलर फ्रेम, इस फ्रेम के अंदर, यानी कि यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास 01। हमारे पास यहाँ पे जो एफ आएगा वो 01, 1 का जो बाइनरी होता है, 1 का बाइनरी 01 होगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 01, और यहाँ पर जो डी आएगा वो एज इट इज 10 यहाँ से उठ के आ जाएगा। तो ये देखो फाइनली क्या बनेगा, 0110। सो हमारे पास मेनली क्या बना, 110। तो भाई 110 का डेसिमल क्या होता है, कौन बताएगा, 110 का डेसिमल। 6, ओके, वेरी गुड आयुष। तो भाई 110 का जो डेसिमल होता है वो 6 होता है। तो मेरे पास जो फाइनली वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर 6 मिलेगी, यानी कि जो यहाँ पर सीपीयू ने 10 लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा था वो किस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो गया, 6 में। तो फाइनली हम सीपीयू को क्या बताएंगे कि जो के कैरेक्टर है वो 6 उसका एड्रेस है, दैट इज द फिजिकल एड्रेस। और आप यहाँ से देख भी सकते हो, 10 हमारा लॉजिकल एड्रेस था के का, और वो कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर कहाँ पहुंच गया, 6 फिजिकल एड्रेस पे पहुंच गया। तो पेज टेबल का यहाँ पर काम क्या था, इस 10 का जो बाइनरी था 1010, उस पे हमने पेज टेबल का लॉजिक लगाया, और उस 10 के बाइनरी को हमने 6 के बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये वापस फिर से फिजिकल एड्रेस अपने डेसिमल में हो जाएगा, जो 6 बन जाएगा। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली द लॉजिकल एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल एड्रेस। तो भाई सर किसी को डाउट है, पूछो, हाँ पूछो। सर आपने कहा था कि वो जो पी है वो 10 है, 10 का जो डेसिमल होता है वो 2 होता है। बिल्कुल सर वो उससे अपने को फ्रेम पता चल गया, सर फ्रेम नंबर कौन सा है। बिल्कुल। ठीक है सर, उसके बाद आपने वो कैसे पता किया कि सर वो थर्ड नंबर पे है, कि वो बताना वापस। देखो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखो, यहाँ पर पी का 10 था, यस सर। 10 का डेसिमल 2 है, 2 मतलब कि सेकंड फ्रेम, तो सेकंड फ्रेम हमारा ये वाला हो गया। यस सर। ठीक है, उसके बाद आप ऑफसेट की बात कर रहे हो ना, वन हम्म। जीरो की, तो वो भी हाँ सर, 2 है। मतलब ये मतलब के कैसे पता चला कि ये थर्ड नंबर पे है यहाँ पे, देखो जीरो प्रोसेस वन कैसा टू, है। 0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा। मतलब सर सेकंड फ्रेम तो पता चल गया, उसके बाद का क्या बताया था सर आपने, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ ये देखो, यहाँ पर आपका जो कन्वर्ट होके आ जाएगा सेकंड फ्रेम, यानी कि हमारे पास जो इसका बाइनरी आएगा वो 01 आएगा, क्योंकि जब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये फ्रेम देखो, ये फ्रेम ये नंबर टू कौन सा है, नंबर को 1। जो प्रेजेंट करते तब 01 से स्टार्ट करते हैं, ये बोल रहा हूँ। दोनों केस में ही करते हैं। ओके सर। हाँ तो यहाँ पर एक मिनट रुको, 10 का हमारे पास बाइनरी है 1010 ही है ना। हाँ जी। हाँ तो यहाँ पर देखो 10 था, तो 10 का जब हमने कन्वर्ट करा डेसिमल में तो 2 यानी कि सेकंड फ्रेम। सेकंड फ्रेम का मतलब कि हमारे पास यहाँ पर अगर 01, तो जब हम उसको वापस कन्वर्ट करेंगे उसके बाइनरी में, तो 1 का जो डेसिमल है उसका हम बाइनरी बनाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 01। यहाँ पर मतलब यहाँ से जो हमारा 10 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 01 में। डिस्प्लेसमेंट जो हमारी होती है, पेज ऑफसेट होती है, वो एज इट इज यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने देखो 10 को जब डिवाइड किया था बाइनरी में तो 1010 आया था, तो यहाँ से जो एज इट इज हमारा 10 है वो यहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो ओवरऑल बन जाएगा वो बन जाएगा 01 इसमें और 10 इधर। हाँ सर, जो फिजिकल एड्रेस में एफ को 01 रिप्रेजेंट किया है वो 2 ही है ना मतलब। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर 10 का हमने पहले बाइनरी किया 1010, हाँ दो दो जी। बिट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ पे भी 10 आया, यहाँ पे भी 10 आया, यहाँ तक क्लियर। उसके हम्म। बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली जो हमारा के, हम के की बात कर रहे हैं ना, तो वो एग्जैक्टली वो वाला पेज जिसमें के है वो कौन से फ्रेम में है, तो यही काम है हमारे पेज टेबल का, इसको कन्वर्ट करने का। तो अभी हम बात कर रहे हैं 10 की, तो 10 की अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल में, तो 10 का मतलब 2 है बाइनरी में।
यस सर। सॉरी डेसिमल में। तो उसके बाद पेज टेबल की हेल्प से हम क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पर सेकंड पेज की बात करें तो सेकंड पेज है हमारा फर्स्ट फ्रेम में। देखो आप सीधा यहाँ से रिलेट करो, पेज नंबर 2 हमारा कौन से फ्रेम में है, 1 में। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 के बाइनरी को कन्वर्ट कर देना है 1 के बाइनरी में। 2 का बाइनरी था 10, 1 का बाइनरी है 01। तो यानी कि जो ये वाली बिट थी हमारी 10 वाली, ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ से 01 में। तो यहाँ पे हमें 01 मिलेगा, और जो डी है वो हमारा एज इट इज जाएगा, वो हमारा 10 हो जाएगा। तो ये पूरा बन जाएगा 0110। तो 0110 हमारा होता है हमारा डेसिमल 6। सो दैट्स वाई जो हमारा 10 है वो कन्वर्ट हो गया 6 में। कोई और एक एग्जांपल आप ले, ये क्लियर हो गया आयुष, हाँ जी या अभी भी सर। डाउट है कुछ? बस यही डाउट था कि आपने ये 2 को 1 में चेंज क्यों किया, बस यही मतलब यही है मेन क्वेश्चन मेरा। 2 को 1 में इसलिए चेंज करा बिकॉज जो हमारा पेज नंबर 2 है, 012, जब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो फ्रेम नंबर 1 में जाके बैठ गया है। और ये सब ठीक है फ्रेम ना? में 1 नंबर तो सीपीयू डिसाइड करता है ना सर, ये कैसे यहाँ बैठ गया वो तो। कौन डिसाइड करता है? मतलब ये फ्रेम नंबर हाँ, 1 वो तो। जो भी, देखो हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे 4 पेजेस हैं, तो एग्जैक्टली exactly हो सकता है कि 4 ही लोकेशन खाली हो, तो हम वहां पे बैठा देंगे जहां भी हमें फ्री अवेलेबल स्पेस मिलेगी। ठीक है, मतलब मिनिमम ये है कि अगर मेरे पास n पेजेस हैं तो n फ्रेम्स अवेलेबल होने चाहिए, दैट्स इट। वो कहीं मर्जी रैंडमली जाके बैठ सकता है, दिस इज नॉन कॉन्टिजियस। ओके सर, ओके ठीक ओके। है, और एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पे हमने डी को एज इट इज किया। तो ऐसा क्यों होगा? बिकॉज अगर आप देखोगे पेज के अंदर भी अगर के मेरा थर्ड लोकेशन पे है, तो वो अगर यहाँ भी जाएगा तो वो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगा। अगर मैं एम एन ओ पी की बात करूँ तो इस पेज के अंदर पी लास्ट में था, तो वो फ्रेम के अंदर भी उसकी जो ऑफसेट है, या हम उसको लिमिट बोल सकते हैं, वो सेम रहेगी। दैट्स वाई हम यहाँ पर एज इट इज इसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पेज कौन से फ्रेम पर जाकर बैठा है वो हमें देखना जरूरी है, वही हमें नेक्स्ट हमारा एड्रेस देगा। सो एनी डाउट एनी वन? सबको क्लियर है? अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये टॉपिक पेजिंग का, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एग्जांपल और डिस्कस कर सकते हैं, हमारे पास 10 मिनट हैं। इसी में से ही किसी और एग्जांपल की बात करें तो भाई कौन सा कैरेक्टर लें, कौन बताएगा? पी ले लें? ले लो सर। चलो पी कैरेक्टर की बात करते हैं। पी का जो लॉजिकल एड्रेस है वो 15 है, लेकिन जब वो मेन मेमोरी में गया तो वो फ्रेम नंबर 2 में गया, सॉरी 3 में गया, जिसको हम 2 से रिप्रेजेंट करें, 012। सो इस फ्रेम में चला गया। तो भाई यहाँ पर देखो ध्यान से, पी का जो लॉजिकल एड्रेस था वो 15 था, लेकिन मेन मेमोरी में जाने के बाद उसका जो फिजिकल एड्रेस है वो 11 हो जाएगा। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, 15 से 11 करके देना है सीपीयू को। ये किसका काम है, पेज टेबल का। तो फिर से हम इसी डायग्राम पर आएंगे। सीपीयू हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, तो इस केस में पी का जो लॉजिकल एड्रेस है वो 15 है, और 15 का बाइनरी क्या होता है, ऑल वन, आई थिंक। यस, इट्स ऑल वन। सो 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1111। तो यहाँ पर देखो हमारे नंबर ऑफ पेजेस भी 4 हैं और पेज साइज भी 4 है। तो डेफिनेटली इस पूरे एग्जाम्पल के लिए हमेशा हमारा 2 बिट्स यहाँ डिवाइड होंगे, 2 बिट्स यहाँ डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर 11 यहाँ चला गया, और लास्ट वाला 11 यहाँ चला गया। अब जरा ध्यान से देखो, तो भाई 11 का डेसिमल बताओ अब कितना होता है, कौन बताएगा? 3। ओके, वेरी गुड प्रखर। सो 11 का डेसिमल 3 होता है। आयुष, 4 के लिए 101 या 100 होता है आई थिंक। हाँ, सो 3 के लिए 11, तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट 2 बिट्स 11 थे, तो 11 के अकॉर्डिंग 3। और मैं ज़रा यहाँ से ध्यान से देखूँ, जो मेरा थर्ड पेज है वो कौन से फ्रेम में है, सेकंड फ्रेम में है, यानी कि 2 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 10। तो मेरा यहाँ पर जो 11 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 में, और यहाँ से जो 11 है वो एज इट इज यहाँ पे चला जाएगा। सो इट विल बी 1011। तो भाई 1011 हमें लास्ट में मिलेगा। अब इसको अगर आप फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो वो आपका क्या है, फिजिकल एड्रेस है। तो बताओ जरा 1011 का डेसिमल क्या होता है? ओके, प्रखर हैज ऑलरेडी आंसर्ड, यस। सो यहाँ पर फिर से आप –
ओके, आई थिंक स्क्रीन इज नाउ विजिबल। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो भाई, P का लॉजिकल एड्रेस 15 था। सबसे पहले वो 15 बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, 2 बिट्स यहाँ आई, 2 बिट्स यहाँ आई। तो ये वाली जो 2 बिट्स हैं इसका हमें कोई इशू नहीं है, वो यहाँ पे चली जाएंगी, 1 1 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। लेकिन जो ये वाला 1 1 था, इसका डेसिमल 3 है। लेकिन जो हमारा थर्ड पेज है वो हमारा सेकंड फ्रेम में है, और इस 2 का जब हम बाइनरी करेंगे तो वो 1 0 होता है। तो यानी कि जो ये 1 1 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 में। सो इट विल बी 1 0 1 1 एंड दैट इज 11। सो 15 जो लॉजिकल एड्रेस था P का वो 11 में कन्वर्ट हो गया, जो रैम में मेन मेमोरी में आने के बाद उसका फिजिकल एड्रेस बना। ओके, एक M लिखा था किसी ने, तो M को भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, चलो लास्ट 5 मिनट्स में। M की बात करें तो कौन बताएगा M का लॉजिकल एड्रेस क्या है? लिखते जाओ भाई चैट बॉक्स में, सॉल्व करो इसको खुद से। लॉजिकल एड्रेस ऑफ M 12। ओके, 12 का बाइनरी 1100, दैट इज यूजिंग 8421। यस, तो इस 4 बिट नंबर को हम 2 बिट्स देंगे P को, 2 बिट्स देंगे D को। तो यानी कि P में क्या आ जाएगा, 1 1, और ऑफसेट क्या होगी, 0 0। तो ये वाली ऑफसेट 0 0 एज इट इज यहाँ आ जाएगी। अब ये 1 1 किस में कन्वर्ट होगा वो हमें चेक करना है। तो 1 1 है फिर से 3, 3 के लिए हमारे पास फ्रेम नंबर है 2। यस, दिस 1 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 0, एंड ऑफसेट हमारी 0 0 एज इट इज रहेगी। तो भाई क्या बन जाएगा लास्ट में, 4 बिट क्या बनेंगी? यस, वेरी गुड वैभव। So 1 1 will be converted to 1 0 and 0 0 will remain as it is. So it will be 1 0 0 0। 1 0 0 0 किसका बाइनरी है? 8 का। ओके, सो लेट्स चेक इन द एग्जांपल वेदर हमारा M 8 पर गया है या नहीं। डेफिनेटली। सो यू कैन सी यहाँ पर M का लॉजिकल एड्रेस 12 था, लेकिन जब वो रैम में गया, फिजिकल मेमोरी में गया, तो फिजिकल एड्रेस उसका 8 हो गया। और ये कन्वर्ट करना, मैप करना किसका काम है? पेज टेबल का। दिस इज व्हाट द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट डू। So I hope I am able to explain the things without the help of the blackboard also। आप लोगों को समझ आ गया होगा exactly क्या करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 बिट्स चाहिए थी, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर पेजेस ज़्यादा होंगे या फिर पेज का साइज कम ज़्यादा होगा, तो उस अकॉर्डिंग आपके बिट्स यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास 8 पेजेस होते, 0 to 7, if there are 8 pages 0 to 7, तो भाई 7 is the largest number। 7 का बाइनरी होता है 1 1 1। यानी कि मुझे 3 बिट्स चाहिए 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उस केस में मैं यहाँ पर फर्स्ट 3 बिट्स यहाँ लेता और बची हुई 1 बिट यहाँ पे लेता। सो उस अकॉर्डिंग मेरे पास पेजेस का आइडिया मिलता मुझे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज आस्क एनीवन यस इफ सर। एनी डाउट इज देयर। Okay, I hope there isn't any doubt, and I will also send you the recording. You can just go it